गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो है लिमिट टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे। पिछले कुछ वीडियो में हमने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज भी हम उसी पार्ट को कंटिन्यू रखते हैं और लिमिट्स पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन इज लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू 10x। सो देखिए दिस कैन बी रिटन एज, यहां पे हमारे पास लिमिट इज पाई बाई टू माइनस एक्स। सो मेक दिस लिमिट टेंस टू जीरो। यहां हमारे पास लिमिट टेंस टू पाई बाई टू है, सो मेक इट जीरो बिकॉज यहां हमारे पास 10x है। सो व्हाट वी कैन डू, दिस कैन बी रिटन एज लिमिट x, ये जो हम चेंज करेंगे सो माइनस पाई बाई टू टेंस टू जीरो। ओके, and this can be written as pi by 2 minus x, okay, and 10x. Now if we assume, let this x minus pi by 2, this x minus pi by 2 equals to h. Okay, अगर हम ये इसको h के इक्वल assume करें then this can be written as limit, okay, x minus pi by 2, that is h. So h minus 0. H tends to 0. Now this is pi by 2 minus x. So यहां से हमारे पास x होगा बिकॉज यहां हमारे पास फंक्शन लिमिट जो है x में थी, सो फंक्शन भी हमारे पास x में था। Here we convert the limit into the form of h. So convert the function into in the form of h. So from here we can write x equals to h plus pi by 2. Okay, so put this value here at the place of x. So h plus pi by 2. Okay, this one. Now 10, here we can write h plus pi by 2, or you can say pi by 2 plus h. So this can be written as limit h tends to 0. Okay, when we simplify this pi by 2 and this cancel out, so यहां हमारे पास minus h, okay, this can be written as minus h and tan pi by 2 plus h, tan pi by 2 plus h. So this can be written as, this is the case of pi by 2. so pi by 2 का केस है हमारा, tan किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कोट में, एंड ये हमारा h एंड pi by 2 plus h कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट, एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट tan विल बी नेगेटिव। सो वो नेगेटिव इस क्वाड्रेंट के रिगार्डिंग और ये नेगेटिव कन्वर्ट हो जाए किसमें, प्लस में। सो नाउ दिस इज h कोट h. नाउ पुट h टेंड्स टू 0. सो नाउ वी नो दैट लिमिट, ओके, h टेंड्स टू 0 tan h अपॉन h, this is equals to 1. This is equals to 1. So convert this code. So this can be written as limit h tends to 0, okay, h and 1 upon tan h. Okay, this can be written as 1 upon tan h, or you can say h upon tan h. Quote h is 1 upon tan h. Now we need अपॉन में h जो है उसकी रिक्वायरमेंट है, सो हम क्या करें, यहां मल्टी डिवाइड बाय h into h, written like this. So now this value will be equal to limit h tends to 0. Okay, ये h और ये h हमारा कैंसिल आउट, एंड here we get 1 upon tan h upon h. So this value is equal to 1. So you can write this one upon this value equal to 1. So this is 1. ये हमारा हुआ आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बाय स्टैंडर्ड मेथड, जो कि हमें सोल्व करने के लिए हमारी बुक में जो मेथड दिया है उसके अकॉर्डिंग। बट इफ वी सोल्व दिस क्वेश्चन बाय डीएल रूल, तब देखिए क्या होगा। सेम क्वेश्चन को हम डीएल रूल से सोल्व करते हैं। सो पुट x टेंड्स टू पाई बाई 2, यहां पे हम डायरेक्ट x टेंड्स टू पाई बाई 2 पुट करके देखते हैं। So this can be written as, देखिए यहां पे put x tends to x, here x tends to pi by 2, so put x equals to pi by 2. So this can be written as pi by 2, ये हमारा pi by 2 माइनस इस x की जगह पुट कर दें pi by 2, ओके, एंड tan, और इस x की जगह पुट कर देते हैं pi by 2.
So pi by 2 minus pi by 2 0 and value of tan pi by 2 is infinity. So this is the form of 0 into infinity. So if we get this form, then convert this form first into 0 by 0 form or infinity by infinity form. Okay, after that apply DL rule. So सबसे पहले हमारे पास ये जो फॉर्म आई है, इस फॉर्म को हम या तो इस फॉर्म में या इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. सो देखिए, दिस tan pi by 2, ओके, दिस कैन बी रिटन एज दिस tan pi by 2. अगर मैं इसको लिख दूं tan pi by 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन cot pi by 2. Okay, tan pi by 2 is equal to 1 upon cot pi by 2. So now pi by 2 minus pi by 2, that is 0, and value of cot pi by 2, value of cot pi by 2 is 1 upon tan pi by 2, or you can say cos upon sin pi by 2, that is 0, because value of cot pi by 2 is 0. So जो हमारी 0 into infinity form थी, 0 into infinity form, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया 0 by 0 फॉर्म में. और 0 by 0 फॉर्म कब कन्वर्ट हुई? When this tan can be written as cot pi by 2. So देखिए, अब हम क्या लिखेंगे इसको? लिमिट x tends to pi by 2, here pi by 2 minus x and upon cot x. So this is the form 0 by 0 form if you put x tends to pi by 2. Now अब हम यहां क्या करेंगे? अप्लाई डीएल रूल. अब हम डीएल रूल अप्लाई करेंगे, देन वी गेट हियर, ये हमारा लिमिट, ओके, एक्स टेंस टू पाई बाई 2. नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ पाई बाई 2, न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे. सो पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन कोट एक्स. कोट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स. अब हम यहां पे वैल्यू पुट करेंगे. सो एक्स टेंस टू पाई बाई 2 पुट करेंगे. सो देखिए, ये तो हमारे पास -1 अपॉन माइनस कोसेक स्क्वायर पाई बाई 2. ये हमारा माइनस माइनस कैंसिल आउट, ओके, माइनस एंड माइनस कैंसिल आउट. 1 अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक पाई बाई 2? सो कोसेक पाई बाई 2 इज 1. सो यहां हमारे पास अपॉन में 1 का स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट. सो 1 अपॉन 1 स्क्वायर, दिस इज 1. सो हमारा जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सो आंसर इज 1 बाय डीएल रूल. ये हमने जो सोल्व किया है बाय डीएल रूल. अब हम देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है. ओके, सेम अगर आप पहले स्टैंडर्ड मेथड से इसको सॉर्ट आउट करते हैं, then this can be written as limit, okay, x tends to pi by 3, यहां पे हम पुट करते हैं, या it can be written as x minus pi by 3 tends to 0. इस लिमिट को हमने क्या किया? 0 की फॉर्म में कन्वर्ट किया. and this can be written as 1 minus cos 6x upon root 2 and pi by 3 minus x. Now let x minus pi by 3, this is equal to h. So you can say x equals to pi by 3 plus h. Okay. So put this value, this can be written as limit, this is equal to h. So h tends to 0, root 1 minus cos 6 into x. X means you can say pi by 3, okay, plus h upon root 2 pi by 3 minus x. X means pi by 3 plus h. So ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 एंड रूट 1 माइनस, नाउ सोल्व दिस वन. देखिए, cos 6 into pi by 3 plus h. If we sort out this, then this can be written as cos 6 अगर मल्टीप्लाई हुआ, then 2 times, so 2 pi, okay, 3 into 2, 2 pi plus 6h. Okay, ये हमारा मल्टीप्लाई हुआ, so 3 2 times कैंसिल हो गया, so 2 pi then 6h. नाउ ये हमारा पाई का केस है, so कोस हमारा कोस में ही रहेगा. नाउ 2 pi, so 1 pi then 2 pi plus h. So plus h means in फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस क्या रहेगा? पॉजिटिव. So this is equals to cos 6h.
So this can be written as minus cos 6h upon, now this is root 2, okay, minus into plus. So minus into plus, this is minus h. So minus h. Now what you have to do, इस कोस को जो है हम क्या करें, दिस कोस कैन बी रिटन एज इक्वल्स टू, देखिए हमारे पास अपॉन में h है, सो इस कोस को हम कन्वर्ट करेंगे साइन की फॉर्म में, कन्वर्ट दिस कोस इनटू द फॉर्म ऑफ साइन. सो देखिए रूट, ओके, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस देखिए cos 6h, this can be written as cos 2 into 3h. Okay, suppose this is a, so this is the form of cos 2a. So this is cos 2, suppose this is a, so cos 2a, so 1 minus 2 sin square a. Okay, so this can be written as 1 minus 2 sin square a. A means 3h, so 3h. Okay, this can be written as like this. So you can say 1 minus 2 sin square 3h upon minus root 2h. ये 1 and minus 1 cancel out, so can be written as limit h tends to 0. ये 1 और ये 1 cancel out and minus into minus plus. So root 2 and sin square, देखिए यहां हमारे पास रहेगा sin square root 2 sin square 3h upon minus root 2h. Now this form can be written as limit h tends to 0, root 2, okay, and square से root cancel out, so sin 3h upon minus root 2h. ये root 2 and root 2 cancel out, इस नेगेटिव सिंबल को हम आउटसाइड निकाल लेते हैं, so can be written as minus limit, okay, h tends to 0. Now sin 3h upon, देखिए हमारे पास h है, this h, so हमें क्या करना है, 3h बनाना है. Okay, so multiply by 3 here and multiply by 3 here. So this can be written as 3h. And this limit also can be written as 3h tends to 0 because हमारे पास लिमिट है h tends to 0. Okay, so मैंने क्या किया, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया. So 3h tends to 0 into 3, 0. So this limit can be written as 3h tends to 0. Now देखिए ये टर्म हमारे सेम है, so ये नेगेटिव सिंबल and value of this is 1 and into 3, so we get minus 3. Okay, so this is the result of question number 2 by by standard method. Now solve this question by DL rule. Okay, DL rule से अगर हम इसको सोल्व करते हैं, then सबसे पहले हम डायरेक्ट x टेंस टू पाई बाई 3 यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, देन वी फाइंड 1 माइनस x टेंस टू पाई बाई 3, सो 1 माइनस कोस 6 इंटू पाई बाई 3 अपॉन रूट 2 एंड पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3. सो 1 माइनस कोस 6 इंटू पाई बाई 3, सो ये हमारा कैंसिल हो गया 2 पाई, सो दिस इज इक्वल्स टू कोस 2 पाई and value of cos 2 pi, देखिए cos 2 pi, so this can be written as cos 2 pi plus 0. Okay, so cos 2 pi plus 0, so pi का केस है, so cos हमारा cos में ही रहेगा 0 and 2 pi plus 0 1 pi, 2 pi and plus 0 means first quadrant, so positive and value of cos 0 is 1, so this is 1 upon root 2 into 0 and 1 minus 1 0 upon 0 form. So this is the form, in the form 0 by 0 form. So apply DL rule. So यहां पे हम क्या करेंगे, DL rule apply करेंगे. Now apply DL rule. Then what you have to do, देखिए जब भी हम इसका न्यूमिनेटर रूट 1 माइनस cos 6x इसका डिफरेंशिएट करेंगे, then we get 1 upon 2 root 1 minus cos 6x. Then differentiation of 1 minus cos 6x का 0, minus minus plus sin 6x, then differentiation of 6x equals to 6.
सो अब जब भी हम डिफरेंशिएट करेंगे हमारे पास ये वैल्यू एज इट इज चलेगी, ओके। और यहां पे हम वैल्यू जो है x टेंस टू पाई बाई 3 पुट करेंगे, देन हियर वी गेट दिस इज 2 एंड 1 माइनस ये हो जाएगा हमारा cos 2 पाई एंड वैल्यू ऑफ cos 2 पाई इज 1। सो ये टर्म हमेशा हमारी जीरो चलेगी, चाहे आप कहीं भी कितनी बार भी डिफरेंशिएट करेंगे। सो चेंज दिस टर्म फर्स्ट, यानी कि अगर रूट की कोई टर्म है और उसको सिंप्लीफाई करने पे रूट में देखिए, इफ देयर इज एनी टर्म इन द फॉर्म ऑफ रूट एंड इन द रूट देयर इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, and the result of that trigonometric function, if we put the limit then 0, it becomes 0, then first change this trigonometric function into some other function, some other trigonometric function। यानी कि यहां पे हम देखिए 1 माइनस cos 6x है। अब आप इसका वैल्यू पुट करेंगे रूट में, देखिए रूट में है, ओके। यहाँ पे 1 माइनस cos 6x आप वैल्यू पुट करेंगे cos 6x x की टेंस टू पाई बाई 3। सो ये 1 माइनस 1 मीन 0, सो 0 बन रहा है। सो पहले इसको किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम डीएल रूल अप्लाई करेंगे। सो दिस कैन बी रिटन एज लिमिट x टेंस टू पाई बाई 3 रूट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 3x, ओके। 3x जैसा हमने सेम लास्ट क्वेश्चन में किया था, सेम वही हम यहां पे अप्लाई करेंगे अपॉन रूट 2 एंड पाई बाई 3 माइनस एक्स। सो नाउ दिस बिकम्स लिमिट x टेंस टू पाई बाई 3। सो ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ओके। एंड माइनस इंटू माइनस वी गेट प्लस। सो हमारे पास माइनस इंटू माइनस प्लस, सो वी गेट रूट 2 एंड साइन 3x अपॉन रूट 2 एंड पाई बाई 3 माइनस एक्स। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब नाउ अप्लाई डीएल रूल। अब हम यहां पे क्या है, डीएल रूल अप्लाई करेंगे, बिकॉज इफ यू पुट x टेंस टू पाई बाई 3 देन वी गेट साइन पाई, सो वैल्यू ऑफ साइन पाई इज 0 एंड दिस इज 0, सो 0 बाय 0 फॉर्म। देन अप्लाई, ओके, डीएल रूल। सो डीएल रूल अप्लाई करेंगे, सो इट कैन बी रिटन लिमिट x टेंस टू पाई बाई 3 sin 3x का डिफरेंशिएशन दैट इज cos 3x and again differentiation of 3x is 3 upon differentiation of this is 0 minus 1, so this is equals to limit, okay, you can say 3 if we put okay, limit x tends to pi by 3, so 3 cos 3x upon this is minus 1, ओके। सो ये जो माइनस 1 है इसको हम यहां अप्लाई कर देते हैं। अब हम x टेंस टू पाई बाई 3 वैल्यू पुट करते हैं, सो माइनस 3 इंटू cos 3x मीन्स यू कैन से cos 3 इंटू पाई बाई 3, x की जगह क्या पुट किया पाई बाई 3, सो ये कैंसिल हो गया, माइनस 3 एंड cos पाई एंड वैल्यू ऑफ cos पाई इज माइनस 1, सो दिस बिकम्स माइनस 3 इंटू माइनस 1, दिस इज 3। सो ये जो है हमारा बाय इसे डीएल रूल से हमारा जो आंसर है। अब हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन 3 इज लिमिट x टेंस टू a cos x माइनस cos a। सो डायरेक्ट अब हम यहां पे डीएल रूल अप्लाई कर रहे हैं। सो देखिए इफ यू पुट x टेंस टू a, फर्स्ट चेक, इफ यू पुट x टेंस टू a, सो दिस बिकम्स cos a, ओके, माइनस cos a, x की जगह a पुट किया सो cos a माइनस दिस इज कांस्टेंट cos a अपॉन इस x की जगह a पुट किया सो a माइनस a, दिस इज 0 बाय 0 फॉर्म, 0 बाय 0 फॉर्म। सो अप्लाई डीएल रूल, अप्लाई, ओके, डीएल रूल हम अप्लाई करेंगे, देन व्हाट वी गेट, देन इक्वल्स टू लिमिट, ओके, x टेंस टू a, लिमिट x टेंस टू a cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x एंड माइनस cos a, दिस इज कांस्टेंट, सो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 अपॉन x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस a, 1 मींस कांस्टेंट 0, सो हियर वी गेट लिमिट x टेंस टू a, सो माइनस sin x minus 0, so minus sin x and upon 1, so minus sin, put x tends to 0, so we put x tends to a, so we get minus sin a। so ये हमारा थर्ड जो क्वेश्चन है उसका आंसर। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन जो है उसकी। फोर्थ क्वेश्चन जो है यहाँ पे पुट x टेंस टू पाई बाई 2, सो देखिए x की जगह पाई बाई 2 पुट करेंगे, सो साइन पाई बाई 2 मींस 1, सो 1 माइनस 1, न्यूमिनेटर 0, और यहां x की जगह पाई बाई 2 पुट किया, सो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 0,
so upon 0. So apply DL rule. Okay, apply DL rule. DL rule apply करेंगे, then we get here equals to limit x tends to pi by 2 this one and 1. Okay, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x अपॉन पाई. पहले तो यहां देखिए दिस कैन बी रिटन एज दिस पाई बाय 2 माइनस एक्स. ओके, पाई बाय 2 देखिए सॉरी पाई बाय 2 minus x and whole square of this. So this can be written as pi square by 4 plus x square minus pi x. Okay, this denominator can be written as like this. अब हमें denominator का differentiate करना है, means इसका differentiate करना है. So differentiation of this one, so इसका 0 plus 2x, okay, and minus pi. This is constant, so constant का differentiation 0 plus x square का differentiation 2x. एंड ये नेगेटिव एंड पाई एक्स का, सो पाई हमारा क्या है कांस्टेंट बाहर आ जाएगा एंड एक्स का डिफरेंशिएशन 1. सो दिस इज, अब हम यहां पे एक्स की टेंस टू पाई बाय 2 पुट कर देंगे, देन हियर यू गेट माइनस कोस पाई बाय 2. सो माइनस कोस पाई बाय 2. एक बार इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय 2, सो माइनस कोस एक्स अपॉन 2x माइनस पाई. अब हम यहां पे पाई बाय 2 पुट करते हैं, सो माइनस कोस पाई बाय 2 अपॉन 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस पाई. सो इसकी वैल्यू 0 एंड इसकी वैल्यू 0. सो अगेन अप्लाई, यहां पे हम अगेन अप्लाई डीएल रूल. फिर एक बार डीएल रूल अप्लाई करेंगे. सो लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय 2, ये नेगेटिव और कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स अपॉन 2x का डिफरेंशिएशन 2 एंड माइनस पाई का डिफरेंशिएशन 0. सो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 माइनस इंटू माइनस प्लस कोस एक्स अपॉन सॉरी साइन एक्स, ओके, अपॉन 2. नाउ पुट x इक्वल्स टू पाई बाय 2. अगर हम x इक्वल्स टू पाई बाय 2 पुट करेंगे, देन वी गेट sin pi by 2 upon 2 and value of sin pi by 2 is 1, so 1 by 2. ये हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का. ठीक है, अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5. सो देखिए x की जगह मैं a पुट करता हूं. सो x टेंस टू a, लिमिट x टेंस टू a. सो ये तो हमारा a एंड दिस इज sin a माइनस x की जगह पुट किया a एंड sin a अपॉन a. x की जगह पुट किया a, सो इट बिकम्स a क्यूब माइनस x की जगह a पुट किया, सो a क्यूब, सो 0 बाय 0. सो यहां पे क्या होगा, अप्लाई डीएल रूल. सो अप्लाई डीएल रूल. डीएल रूल अप्लाई करेंगे, देन इट कैन बी रिटन एज लिमिट, ओके, x टेंस टू a. दिस इज a मींस a इज कांस्टेंट, सो कांस्टेंट बाहर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस, देखिए साइन इज कांस्टेंट, सो बाहर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1, ओके, अपॉन a कांस्टेंट है हमारा बाहर, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस a स्क्वायर कांस्टेंट है हमारा बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1. नाउ पुट x टेंस टू a. सो x टेंस टू a पुट करेंगे, तब देखिए ये बनेगा हमारे पास a कोस a, x की जगह a पुट किया माइनस साइन a अपॉन, ओके, x की जगह a पुट किया, देन यू गेट 2a स्क्वायर, 2a इंटू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. सो यू विल गेट a कोस a माइनस साइन a अपॉन a स्क्वायर. सो ये हमारा होगा आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5. अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6. देखिए x टेंस टू पाई बाय 2. सो यहां पे हम पाई बाय 2 पुट करते हैं. देखिए रूट की फॉर्म है जैसा यहां था, बट यहां पे इफ यू पुट x टेंस टू पाई बाय 2, x की जगह पाई बाय 2 पुट करते हैं तो साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1. सो 1 प्लस 1 इट बिकम्स 2. 0 नहीं बन रहा है, यहां जो है 0 बन रहा था, बट यहां इसमें 2 बन रहा है. सो देखिए आंसर नंबर 6, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2, सो रूट 2 माइनस रूट 1 प्लस साइन x
अपॉन कोस स्क्वायर एक्स. Okay. So if we put x tends to pi by 2, so this becomes root 2 minus root sin x. x की जगह pi by 2 put किया, so sin pi by 2 and value of sin pi by 2 is 1. So 1 plus 1 upon cos x. cos pi by 2 की वैल्यू 0. देखिए cos pi by 2 की वैल्यू 0, so 0 स्क्वायर and root 2 minus root 2 0 upon 0. So 0 by 0 फॉर्म है. So what you have to do, apply DL rule. और देखिए यहां पे this becomes root 2. ये जो हमारा root 2 बन रहा है, अगर ये फॉर्म root 0 बनती, ओके 0 बनती, देन उस कंडीशन में हम पहले इसको किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कन्वर्ट करते, as we did in the question number 2. Okay, so apply DL rule. DL rule अप्लाई करेंगे, देन लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2. देखिए रूट 2 न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन, रूट 2 का डिफरेंशिएशन, रूट 2 इज कांस्टेंट, सो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन, देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ रूट 1 प्लस साइन एक्स. सो पहले तो इसमें रूट का अप्लाई होगा, सो 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और एक्स की जगह हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स. देन अगेन डिफरेंशिएशन, जो वैल्यू आपकी एक्स की जगह है दैट इज 1 प्लस साइन एक्स. So you get 1 upon 2 root 1 plus sin x, and 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस sin x का डिफरेंशिएशन cos x. So ये हमारा डिफरेंशिएशन होगा इसका. So minus the differentiation of this can be written as 1 upon 2 root 1 plus sin x into cos x. Okay, and divided by differentiation of cos square x. So differentiation of cos square x means differentiation of cos x का होल स्क्वायर. सो पहले पावर का अप्लाई होगा 2 cos x, देन अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ cos x. सो cos x का डिफरेंशिएशन दैट इज माइनस sin x. ओके, सो ये हमारा डिफरेंशिएशन होगा. सो दिस कैन बी रिटन एज 2 cos x एंड माइनस sin x. सो now this can be written as, देखिए इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस, सो माइनस कोस x अपॉन 2 रूट 1 प्लस साइन x डिवाइडेड बाय दिस. एंड देखिए ये तो हमारा नेगेटिव हम बाहर निकाल लें, सो 2 साइन x कोस x, सो दिस इज इक्वल्स टू साइन 2x. सो डिवाइडेड बाय ये हमारा नेगेटिव बाहर, एंड ये डिवाइड की फॉर्म में है, अपॉन में है, देखिए अपॉन दिस वन, सो साइन 2x. नाउ दिस नेगेटिव एंड दिस नेगेटिव कैंसिल आउट. सॉरी, सो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 cos x अपॉन 2 साइन 2x, मैंने पहले लिख लिया, रूट 1 प्लस साइन x. नाउ पुट x टेंड्स टू पाई बाय 2. सो अब हम x टेंड्स टू पाई बाय 2 पुट करें, सो cos पाई बाय 2, ओके, cos पाई बाय 2 एंड अपॉन 2 साइन 2x. सो अगर हम पुट करें पाई बाय 2 इक्वल्स टू, यहां पे अगर हम पुट करते हैं, इफ यू पुट x टेंड्स टू पाई बाय 2, सो इट बिकम्स साइन पाई एंड वैल्यू ऑफ साइन पाई इज 0. सो यू कैन से साइन पाई एंड रूट 1 plus sin pi by 2, and value of cos pi by 2 is 0 upon value of sin pi is 0. So 0 into this one, 0 को हम इसी से मल्टीप्लाई करें, then we get 0. So again हमें क्या फॉर्म मिली है, 0 by 0. So क्या होगा, फिर से देखिए, again apply DL rule. ओके, या हम बात करें कि ये जो sin 2x है, इसको अगर हम इसी फॉर्म में रहने देते हैं, this is suppose you can say 2 sorry, ये हमारा नेगेटिव सिंबल एंड 2 sin x cos x, sin x एंड cos x. ओके, सो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव हमारा कैंसिल आउट, और ये जो फॉर्म है ये हमारी 2 रूट 1 प्लस साइन x and 2 sin x and
cos x। देखिए ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि फिर ये cos x और ये cos x भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी हमें दोबारा डिफरेंशिएट करना है, सो हमारे पास कुछ फंक्शन जो वो कम हो जाएंगे। सो ये cos x कैंसिल हो गए 1 और यहां से cos x हमारा एलिमिनेट हो गया। ओके, नाउ पुट x टेंड्स टू पाई बाई 2। देखिए एक तो हमारा इसके कारण 0 हुआ था, सो वो हमने एलिमिनेट ही कर दिया। नाउ पुट x टेंड्स टू पाई बाई 2। अब हम अगर इसमें x टेंड्स टू पाई बाई 2 पुट करते हैं, देन दिस इज 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस साइन पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 इंटू 2 साइन पाई बाई 2। सो 1 अपॉन 2, this value is root 2, okay, and pi by 2 is 1, so into 2, so you can say 1 upon 4 root 2, 1 upon 4 root 2। ये हमारा जो है सॉल्यूशन हुआ क्वेश्चन नंबर 6 का। ओके, अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सो आंसर 7, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 8 कोट 4x माइनस कोस 4x अपॉन पाई माइनस 8x क्यूब। ओके, इफ यू पुट x टेंड्स इक्वल्स टू, पुट x टेंड्स टू पाई बाई 8, सो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 8, if you put x tends to pi by 8, then here we get or you can say convert this x minus pi by 8 tends to 0। फर्स्ट ये जो लिमिट है इसको टेंस टू पाई बाई 8 की जगह टेंस टू 0 में कन्वर्ट करेंगे। सो इसको हमने चेंज किया इस साइड, देन ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया एंड कोट 4x माइनस कोस 4x अपॉन पाई माइनस 8x क्यूब। ओके, नाउ लेट यू कैन से, सॉरी ये हमारा नेगेटिव सिंबल, नेगेटिव क्योंकि इधर आया तो नेगेटिव में चेंज हो गया। नाउ x माइनस पाई बाई 8 इक्वल्स टू h, सो यू कैन से x इक्वल्स टू पाई बाई 8 प्लस h। सो ये तो हमारी हो जाएगी इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड कोट फॉर x मीन्स पाई बाई 8, ओके, प्लस h माइनस कोस 4 इंटू पाई बाई 8 प्लस h अपॉन पाई माइनस 8 इंटू x मीन्स पाई बाई 8 प्लस h एंड क्यूब ऑफ दिस। सो इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। नाउ if we multiply this, so 4 cancel out by 8 2 times, so cos pi by 2 प्लस h माइनस कोस, ये हमारा कैंसिल हो गया, सो पाई बाई 2 एंड मल्टीप्लाई दिस 4, सो इट बिकम्स 4h एंड प्लस 4h अपॉन पाई माइनस, देखिए ये हमारा मल्टीप्लाई होगा, सो 8 कैंसिल आउट, सो पाई एंड माइनस 8h एंड क्यूब ऑफ दिस इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। सो पाई बाई 2 का केस है, देखिए दिस इज द केस ऑफ पाई बाई 2, सो कोस हमारा कन्वर्ट हो जाएगा साइन में एंड दिस इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस होता है नेगेटिव, सो माइनस 4h देन माइनस पाई बाई 2 का केस है, कोस हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी दिस इज कोट, सॉरी दिस इज कोट नॉट कोस, दिस इज कोट। सो कोट हमारा कन्वर्ट होगा, देखिए कोट पाई बाई 2, सो कोट हमारा कन्वर्ट होगा किसमें, tan में, कोट विल बी कन्वर्टेड इनटू tan, कोट पाई बाई 2 प्लस h, सो कोट पाई बाई 2 का केस tan में कन्वर्ट हो गया सेकंड क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में कोट हमारा होता है नेगेटिव। नाउ ये हमारा नेगेटिव सिंबल, नाउ कोस पाई बाई 2 का कोस केस है तो कोस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, ओके, एंड पाई बाई 2 एंड 4h, सो 4h और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस होता है किसका, नेगेटिव, कोस किसका, नेगेटिव, सो ये हमारा एक ये नेगेटिव और एक क्वाड्रेंट के रिगार्डिंग नेगेटिव, तो कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में।
ये पाई एंड पाई कैंसिल आउट एंड माइनस इंटू माइनस प्लस, सो यू कैन से 8h क्यूब। ओके, 8h क्यूब। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहां पे हमारे पास h क्यूब है, हियर h क्यूब 4h, और यहां पे हमारे पास h क्यूब है। मीन्स अगर हमारे पास सपोज ये जो वैल्यू है ये इस तरीके से होती, तो हम क्या करते, इनको -10 4h अपॉन इस 8h प्लस साइन 4h अपॉन 8h, और ये जो 8h को हम लिख देते 2 इंटू 4h, 2 इंटू 4h। सो ये तो हमारा 1 हो जाता, ये भी 1 हो जाता। ओके, सो हमारा आंसर आ जाता। बट यहां हमारे पास जो फॉर्म है वो क्यूब की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में है? क्यूब की फॉर्म में। मीन्स आइदर यू शुड कन्वर्ट दिस सिंगल h इज न्यूमिनेटर इन क्यूब फॉर्म। सो हम क्या करेंगे, दिस कैन बी रिटन एज लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस माइनस tan 4h कैन बी रिटन एज sin 4h अपॉन cos 4h, ओके, प्लस दिस इज sin 4h अपॉन 8h क्यूब, 8h cube. So this can be written as limit h tends to 0. LCM हमारा होगा cos 4h and minus sin 4h plus, okay, sin 4h and cos 4h, and अपॉन में हमारे पास यहां 8h क्यूब, 8h क्यूब। अब इन दोनों टर्म से देखिए sin 4h एंड sin 4h हम कॉमन निकाल लेंगे। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, sin 4h हमने कॉमन निकाला इन दोनों टर्म से। सो यहां हमारे पास cos 4h एंड -1, सो -1 अपॉन cos 4h एंड 8h क्यूब। नाउ इस 1 को हम एलिमिनेट करेंगे। सो लिमिट h tends to 0, sin 4h into this can be 2, okay, 1 minus 2 sin square, okay, 2h, cos 2h की आइडेंटिटी हमने यहां अप्लाई कर दी, -1 अपॉन, देखिए दिस cos 4h can be written as cos 2 into 2h, and suppose this 2h is equals to a, so we know that cos 2 and this is a, so 1 minus 2 sin square a, so 1 minus 2 sin square, and what is a is 2h. so ये आइडेंटिटी हमने cos 4h की जगह अप्लाई करके वैल्यू पुट की है अपॉन cos 4h, okay, cos 4h and 8h cube. So now what we have to do, this can be written as a limit, okay, h tends to 0, sin 4h upon cos 4h, this is tan 4h, okay, tan 4h, ये और ये हमारा कैंसिल आउट। सो यहां हमारे पास -2 sin square 2h अपॉन 8h क्यूब, 8h क्यूब। सो दिस कैन बी रिटन एज, यहां से हमारे पास जो जो कॉन्स्टेंट टर्म है उनको हम बाहर निकाल लेते हैं। सो देखिए एक तो हमारे पास -2 बाहर आ गया, दिस कॉन्स्टेंट न्यूमिनेटर से, और डेनोमिनेटर से हमारे पास 8 क्यूब, ओके, 8 क्यूब एंड h क्यूब, सो 8 क्यूब हमारे पास बाहर आ गया। नाउ इनटू लिमिट h tends to 0, okay, h tends to 0, now tan 4h and sin square 2h, so this can be written sin 2h into sin 2h upon this h क्यूब, क्योंकि h क्यूब तो हमारे पास बाहर निकल के आ गया, और ये हमारे पास हुआ h क्यूब, and h cube can be written as h into h. So now limit equals to -2 upon 8 cube. Okay, 2 upon 8 cube and 4. Now suppose
अब हमारे पास h टेंस टू 0, सो देखिए यहां मुझे 4h, सो इंपॉर्टेंट थिंग, लिमिट h टेंस टू 0 tan 4h अपॉन h, ओके, लिमिट h टेंस टू 0 sin 2h अपॉन h, लिमिट h टेंस टू 0 sin 2h अपॉन h। ये जो लिमिट है, दीज आर थ्री फंक्शंस इन मल्टीप्लीकेशन फॉर्म, सो अलग अलग लिमिट की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं ना। यहां हमारे पास 4h है, सो मैं क्या करूं, यहां 4 से मल्टीप्लाई और यहां 4 से, इन द नेक्स्ट स्टेप, ओके, इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी हैव टू डू, इक्वल्स टू -2 अपॉन 8 क्यूब, सो लिमिट देखिए tan 4h, सो मैंने 4 से यहां मल्टीप्लाई कर दिया, ओके, और 4 से यहां कर दिया, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ h टेंस टू 0, अब ये हमारे पास h टेंस टू 0 है, सो अगर मैं इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं एंड इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, देन 4h टेंस टू 0 इंटू 4 0, सो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा 4h टेंस टू 0, सो दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस, ओके। नाउ सेम यहां पे, यहां हमारे पास 2h है, सो लिमिट 2h टेंस टू 0, और मैंने यहां क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से यहां कर दिया। सेम यहां पे लिमिट 2h टेंस टू 0, सो 2 इंटू साइन 2h अपॉन 2h, सो नाउ इक्वल्स टू -2 अपॉन 8 क्यूब मींस 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 4, this 4 and value of this one is 1, so into 1 into this 2 and value of this one is 1 into same यहां पे 2 into 1, so देखिए 4 2 जा 8, ये 8 हमारा कैंसिल हो गया, ओके, एंड न्यूमिनेटर हमारे पास 2 into 2 4, so 4 हमारा 8 से कैंसिल होके यहां -1 अपॉन, so न्यूमिनेटर 4 2 टाइम्स, so we get 1/16, ओके, 1/16, ये हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट हमारा, इसको डीएल रूल से जो है आपको सोल्व करना है। हम बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखें क्वेश्चन नंबर 8 इज इंपॉर्टेंट, लिमिट x टेंस टू π/4 fx माइनस f π/4 अपॉन x माइनस π/4, x माइनस π/4, where fx equals to sin x, where fx equals to sin 2x, okay, so देखिए it can be written as limit x tends to π/4 fx, so fx equals to sin 2x, so मैंने यहां पे रख दिया sin 2x माइनस f π/4, so देखिए fx equals to this one, okay, fx equals to this one, so इस x की जगह अगर मैं π/4 पुट करता हूं यहां पे, so f π/4, यहां भी मुझे क्या पुट करना होगा, 2 into π/4, so f π/4 की वैल्यू हो जाएगी sin 2 into π/4 अपॉन x माइनस π/4, इसको हम सोल्व करेंगे, लिमिट x टेंस टू π/4, दिस इज sin 2x, ये हमारा कैंसिल हो गया साइन, दिस बिकम्स 2 and 4 कैंसिल हो गए, sin π/2 मींस यू कैन से sin π/2 इज 1 अपॉन x माइनस π/4, ओके। इफ वी पुट x टेंस टू π/4 यहां पे, सो ये π/2 मींस 1 minus 1 0 एंड 1 minus π/4 minus π/4 0/0 फॉर्म है, this is 0/0 form, so apply, okay, apply DL, so DL rule हम अप्लाई करेंगे, so equals to limit x tends to π/4, न्यूमिनेटर का साइन का हमारे पास हो जाएगा cos 2x, sin 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x एंड अगेन 2x का 2 -1 का डिफरेंशिएशन 0 अपॉन x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस π/4 का 0, so अब हम वैल्यू पुट करेंगे π/4, देन वी गेट ये 2, ओके, cos 2 इंटू x की जगह हम वैल्यू पुट करें π/4 अपॉन 1, सो यू गेट 2 cos, कैंसिल होके π/2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos π/2 इज 0, सो 2 into 0 is 0, सो ये हमारा 0 इज ए डिफाइंड वैल्यू,
सो क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका सॉल्यूशन होगा 0। अब हमारा जो लास्ट नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, इसको देखिए, अलग क्वेश्चन है थोड़ा। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, यहां हमारे पास जो लिमिट है दैट इज n टेंस टू इंफिनिटी, देन n साइन ओके पाई अपॉन 4n, देन कोस पाई अपॉन 4n। सो यहां पे हमारे पास n टेंस टू इंफिनिटी है, ओके। सो n टेंस टू इंफिनिटी, फर्स्ट कन्वर्ट दिस n को, ये जो n है इसको हम लिख सकते हैं। सो देखिए इंपॉर्टेंट थिंग, इफ n टेंस टू इंफिनिटी देन 1/n, देखिए यहां पे हमारे पास सब में 1/n की फॉर्म है। सो देन 1/n टेंस टू 0, जब n इंफिनिटी की फॉर्म में है देन 1/n टेंस टू क्या होगा 0। सो दिस कैन बी रिटन एज, okay, 1/n tends to 0, so this can be written as limit 1/n tends to 0 and n sin pi upon 4n and cos pi upon 4n। सिर्फ मैंने जो लिमिट है n tends to 0, इसको 1/n tends to n tends to infinity, इसको मैंने कन्वर्ट किया 1/n tends to 0, इन्फिनिटी की जो टर्म है, जो लिमिट है उसको 0 में कन्वर्ट किया। नाउ इफ वी टेक लेट 1/n equals to h, okay, then n should be 1/h। so अब हम ये चेंज और करते हैं यहां, so this can be written as limit, okay, क्योंकि 1/n की फॉर्म थोड़ा सा सोल्व करने के लिए कॉम्प्लिकेट होगी। so let 1/n tends equals to h, so this can be written as tends to 0, और ये जो n है, n हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 1/h, then sin pi upon 4, okay, and 1/n, so 1/n is h, so this one, and cos pi by 4 h, okay। so देखिए यहां पे हमारे पास pi h by 4, so क्या करते हैं हम, लिमिट h टेंस टू 0, मैं 2, दिस इज 1/h, अब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं एंड 2 से डिवाइड कर देता हूं। सो साइन पाई बाई 4h एंड कोस पाई बाई 4h, सो 2 साइन a कोस a, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये 2 तो यूज हो जाएगा एंड 1/2h, ये 2 एंड ये h, और दिस बिकम्स साइन 2a, सो साइन 2 इंटू पाई बाई 4h, सो इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 और 1/2h, न्यूमिनेटर में हमारे पास यू कैन से साइन 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे दिस वन, सो वी गेट पाई बाय 2h, ओके, अपॉन 2h। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, देखिए आपको क्या करना है, यहां पे h की जगह मैं 0 पुट करता हूं, सो ये 0, h टेंस टू 0, so it becomes 0, sin 0 upon h 0, so 0/0 फॉर्म। so या तो आप डायरेक्ट डीएल रूल अप्लाई कर दीजिए। so देखिए इफ वी अप्लाई, यहां पे अप्लाई डीएल रूल, so क्या होगा, इट बिकम्स लिमिट h टेंस टू 0, साइन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा कोस पाई बाई 2h में, एंड अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ पाई बाई 2h का, यहां h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सो पाई बाई 2 अपॉन 2 हमारा कांस्टेंट और h डिफरेंशिएशन 1। अब हम h की वैल्यू 0 पुट करेंगे, सो cos 0 की वैल्यू 1, सो 1 इंटू पाई बाई 2 अपॉन 2, दैट इज पाई बाई 4। ये हमारा होगा सॉल्यूशन बाय डीएल। बट अगर हम डीएल रूल अप्लाई नहीं करते हैं, स्टैंडर्ड मेथड से करते हैं, देन दिस कैन बी रिटन एज लिमिट h टेंड्स टू 0, ओके, साइन पाई बाई 2 इंटू h अपॉन, इस 2 को मैं एक बार बाहर निकालता हूं अलग से, और यहां हमारे पास है h, सो मुझे चाहिए पाई बाई 2h, सो मैंने क्या किया, पाई बाई 2 से यहां डिवाइड कर दिया एंड पाई बाई 2 से यहां मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। और ये जो h है इसको मैंने बना दिया पाई बाई 2h टेंस टू 0, बिकॉज पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इन बोथ साइड, देन वी गेट दिस लिमिट।
So now pi h by 2 tends to 0, pi by 2h, pi by 2h. So value of this is 1. So we get 1 into this pi by 2 upon this 2. So we get pi by 4. So ये हमारा सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 9 का. So थैंक यू वेरी मच. अगर आपको मेथड जो प्रोसेस है समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच.